Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's class we will be studying tangents and normals theory part from the chapter Applications of Derivatives. So let us start. First we have to revise straight lines concept from class 11th because this chapter is based on straight lines concept. First topic I am taking slope of a line. So what is slope of a line? It is represented by m and its formula is tan theta, where theta is the inclination of the line. So it is inclination bachcha, the angle made by the line with the positive x-axis. We can see in this diagram. So we have a line like this and say it is making angle theta with the positive x-axis. So what will be the slope? Tan theta. Now this is first formula and one more formula is there bachcha. M is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 comma y1 is a point, say A, and x2 comma y2 will be the second point, say B. So if we are having any 2 points which lie on the line, then we can use this formula. Third formula is minus A by B. If we are having equation of the line, say ax plus by plus c is equal to 0, then we can find slope using this formula, minus coefficient of x divided by coefficient of y. तो बच्चा ये 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में से हम यूज करके स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. डिपेंड करता है हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है. अगर हमारे पास थीटा है सो tan थीटा विल बी द फॉर्मूला. इफ वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स y2 minus y1 upon x2 minus x1, we can use this formula. And the third, if we are having equation, then minus a by b will be the slope of the line. राइट. इनके अलावा बच्चा हमारे पास कुछ और भी रिजल्ट्स हैं रिलेटेड टू द लाइन. सेकेंड इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. दिस इज अ पर्टिकुलर केस. सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0.5 बिकॉज एक्स एक्सिस के लिए जो थीटा है वो 0 है एंड tan थीटा के अकॉर्डिंग tan 0 एंड दैट इज 0. स्लोप ऑफ y एक्सिस विल बी नॉट डिफाइंड बिकॉज इन दिस केस द थीटा विल बी 90 degree. So tan 90 degree will be not defined. How can we use bachcha as per calculation? If m is not defined, I can say 1 by m will be 0. Now the fourth case, if we are having any 2 lines L1 and L2 and L1 is parallel to L2, then their slopes will be equal. M1 will be equal to M2. Fifth, if we are having 2 lines L1 and L2 and if they are perpendicular, then the product of the slope will be minus 1. Or we can say slope of one line will be negative reciprocal slope of another line. That is M1 is equal to minus 1 by M2. Now angle between 2 lines. Angle between any 2 lines. So what is the formula for this bachcha? Say theta is the angle between 2 lines, then formula will be tan theta is equal to modulus of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2. But there is a condition that 1 plus m1 m2 should not be 0, or you can say m1 into m2 should not be minus 1. अगर ये -1 हो गया तो ऑब्वियसली फिफ्थ केस के अकॉर्डिंग वो परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे लाइन्स, यानी कि एंगल विल बी 90 डिग्री. बट अगर वो -1 नहीं है देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल बी हैविंग एंगल बिटवीन 2 लाइन्स. नाउ सेवंथ, which is important, how can we find equation of a line?
So equation of a line. So what is the formula for equation of a line, बच्चा? How can we find equation of a line? The formula is y minus y1 is equal to m into x minus x1. M is the slope of the line and x1 comma y1 is any point on the line. So using this formula we can find equation of any line. इसके अलावा बच्चा स्ट्रेट लाइन में आपने काफ़ी डिफरेंट फॉर्मूलाज किए होंगे फॉर लाइन लाइक इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, बट ये एक ऐसी फॉर्म है जो सब में एप्लीकेबल है. यू शुड नो वन पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन एंड you should know slope of the line. Then using this formula we can find equation of the line. अब बच्चा ये सब कुछ तो हो गया स्ट्रेट लाइंस का. अब टेंजेंट और नॉर्मल जो 12th का टॉपिक है वो हम करने वाले हैं. सो टेंजेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन. सो टेंजेंट एंड नॉर्मल. So start with the first topic, that is tangent. So say we have a curve like this, y is equal to f of x, and say this is a tangent at this point. So tangent is not new thing. For tangent बच्चा ये हमारे लिए पुराना टॉपिक है, आपने 10th क्लास में भी किया होगा. टेंजेंट इज व्हाट, जो एक लाइन पे एक पॉइंट पे कर्व को टच करे. सो से दिस इज अ पॉइंट P. तो ये जो टेंजेंट है ये क्या है, टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट P x1, y1. सो पॉइंट का बच्चा अपना एक अलग रोल है, क्योंकि जितने पॉइंट्स है उतनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, उससे कम भी हो सकती हैं, बट देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स. तो जब भी हम टेंजेंट को स्टडी कर रहे हैं या टेंजेंट के लिए इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वी शुड नो दैट जो वो टेंजेंट है वो किस पॉइंट पे है. तो पॉइंट की इंपॉर्टेंस है, राइट बच्चा. सो इफ दिस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट P x1, y1, so using this first we can say this is what, tangent to the curve y is equal to f of x at the point P x1, y1 is this, right बच्चा. तो ये जो वाइट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट. तो जब भी टेंजेंट को स्टडी करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, कर्व एंड पॉइंट इन दोनों का रोल है. नाउ द सेकेंड इज नॉर्मल. सो व्हाट इज नॉर्मल? जो नॉर्मल लाइन है बच्चा, यू नो नॉर्मल, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, दे आर रिलेटेड टू 90 डिग्री. सो 90 डिग्री. सो यहाँ पे क्या रिलेशन है, नॉर्मल इज नथिंग बट अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो नॉर्मल भी बच्चा कर्व के लिए होगी, पॉइंट्स के लिए होगी, तो जितने पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मल. सो नॉर्मल टू द कर्व y is equal to f of x at point P x1, y1 will be somewhere let me make the diagram ऐसे कुछ. तो ऐसे कुछ करके बच्चा आपकी जो होगी नॉर्मल होगी, ये टेंजेंट एंड दिस इज नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. सो दिस इज व्हाट, नॉर्मल टू द कर्व y is equal to f of x at point P x1, y1. तो बच्चा जैसे टेंजेंट के लिए था वैसे नॉर्मल के लिए है. तो नॉर्मल के अगर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, स्लोप फाइंड आउट करना है, वी शुड नो पॉइंट, वी शुड नो कर्व, बिकॉज पॉइंट्स के अकॉर्डिंग नॉर्मल चेंज होते जाएंगे. तो पॉइंट का अपना एक अलग रोल है. सो पॉइंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल हमें मिल जाएगी. अब जब नॉर्मल टेंजेंट दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, तो जितना भी कॉन्सेप्ट अभी हमने किया है ये कॉन्सेप्ट इन दोनों पे भी एप्लीकेबल है,
we can find slope of this tangent, we can find slope of this normal, we can find also equations. but because ये जो टॉपिक है ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में, तो कुछ ना कुछ तो डेरिवेटिव का रोल होगा, तो अब उस रोल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिजल्ट है और उस रिजल्ट को अभी हमें देखना है, राइट बच्चा. So as per the applications of derivatives, we are having a result and which says that slope of tangent to the curve y is equal to f of x at a point say p x1 y1. पॉइंट की इंपॉर्टेंस है बच्चा, पॉइंट के बिना आप स्टडी नहीं कर सकते हैं. सो एट दिस पॉइंट विल बी, say it is empty, we are representing by empty, m slope and t for tangent. So empty will be the derivative of the curve dy by dx at that point x1 y1. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चंस में देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज दिस, एंड ऑल्सो इट कैन बी रिटन एज एफ प्राइम एक्स x1 y1. तो करना क्या होता है, एज पर दिस रिजल्ट, इफ वी वांट टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उस कर्व को डिफरेंशिएट करना है. उस कर्व का जो भी डेरिवेटिव आता है dy बाई डी एक्स, यानी कि जो y की वैल्यू एक्स का एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करना है, एंड उसमें x की जगह एंड y की जगह अगर दोनों की इन्वॉल्वमेंट है तो पॉइंट पुट करना है. तो यूजिंग दिस वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट. बच्चा इसका डेरिवेशन भी है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो डेरिवेशन की भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी. तो प्लीज़ बच्चा कोई भी अगर डाउट होता है या फीडबैक है, सजेशन है, कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ उसे आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि आई कैन अपलोड मोर वीडियोज़ एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है बच्चा, ओके. तो ये तो हो गया रिजल्ट एज पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग यही हमारे पास रिजल्ट है, बाकी सब पुराना काम है, यानी कि स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट. तो नाउ वी कैन कंबाइन स्ट्रेट लाइंस कॉन्सेप्ट टू दिस फॉर्मूला, राइट. सो हाउ कैन वी यूज स्ट्रेट लाइंस कॉन्सेप्ट. सो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं. तो थर्ड पॉइंट बच्चा मैं इसी को रीराइट कर रही हूँ. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय एम्प्टी, जो पहले भी रिप्रेजेंट किया था, एंड दैट विल बी द सेम थिंग dy बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द कर्व, और उसमें पॉइंट पुट कर दो, और यू कैन से एफ प्राइम एक्स एंड उसमें पॉइंट पुट कर दो. ठीक है, तो इसमें हमने लिखा नहीं है एट विच पॉइंट एंड टू द कर्व, तो वो अंडरस्टूड है बच्चा. इफ आई एम नॉट राइटिंग तो वो आप समझ जाना कि कोई एक पर्टिकुलर कर्व होगा, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा. तो लिख लेते हैं ब्रैकेट में, टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट p, दैट इज x1 y1. So if this is slope of tangent, can we find slope of normal? We know normal is nothing but perpendicular to the tangent. So as per the above result, देखो हमने एक ऊपर result लिखा हुआ है जिसमें we are saying that whenever there are two lines which are perpendicular lines, you can see the fifth point, the slope of one line will be negative reciprocal slope of other line. So using this concept, because normal is perpendicular to the tangent, so I can say slope of normal will be negative reciprocal slope of tangent. Again the same thing, slope of normal to the curve y is equal to f of x at point p. ठीक है, तो बच्चा पॉइंट और कर्व मेंशन होना ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर नॉर्मल, और यू कैन से स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर टेंजेंट. सो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट which is f prime x at that point, or you can say -1 upon dy by dx at that point. So normal and tangent are perpendicular, hence slope of normal will be negative reciprocal slope of tangent. Now the fifth point, so this is a particular case if tangent is parallel to the x-axis. If tangent is a parallel to the x-axis, so we know whenever two lines are parallel their slopes will be equal, and also we know slope of x-axis is 0, so I can say slope of tangent will be 0. So what is slope of tangent बच्चा, dy by dx at point p, so this will be 0, right. तो वही है बच्चा, रिजल्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, बस उनको कंबाइन करते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा. नेक्स्ट केस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो इन y एक्सिस व्हाट वी डू, द स्लोप, the reciprocal slope is 0 in the case of y-axis, and since tangent is parallel to y-axis, the slope of tangent will be same as slope of y-axis. So I can say that reciprocal slope of tangent will be 0, क्योंकि y-axis के लिए भी हम वही concept use करते हैं. So 1 upon mt will be 0, or you can say 1 upon dy by dx will be 0. Reciprocal will be 0, right? Now the seventh case, and which is equation of a tangent. How can we find equation of a tangent to the curve, say y is equal to f of x, and at a point say p x1 y1.
So how can we find equation of a tangent at a particular point to the curve? Tangent is a line, so what is the formula for line? इक्वेशन के लिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टू एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे स्लोप की जगह क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट भी लाइन है तो उसका स्लोप आएगा. एंड वी नो व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, तो वो हम पुट कर देंगे स्लोप की जगह, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट. राइट बच्चा? Now the 8th point, equation of a normal. How can we find equation of a normal? So normal के लिए बच्चा normal is also a line. Normal to the curve y is equal to f of x at point P. ये लिख लेंगे. So normal is also a line बच्चा. So line के लिए हमें फॉर्मूला पता है equation का. That is y minus y1 is equal to slope of normal into x minus x1. तो यहाँ पर slope of normal की जगह अब normal का slope हमें पुट करना है बच्चा. And what is that? y minus y1 is equal to negative reciprocal of derivative of the curve into x minus x1. So using this we can find equation of the normal. ठीक है, राइट? सो बच्चा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए और उनको कंबाइन करके आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं खुद से. अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद नहीं रहता है बट आपको पता है टेंजेंट एक लाइन है एंड स्लोप इसका ये है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये तो हो गया बच्चा एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट. एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है बट उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम कर लेते हैं. एंड वो जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो है रिलेटेड टू एंगल बिटवीन टू कर्व्स. ठीक है, सो द 9th पॉइंट इज एंगल बिटवीन two curves. So I am taking curves as y is equal to f of x and y is equal to g of x. Diagram भी बना लेते हैं. Say this is the first curve, y is equal to f of x and this is second curve, y is equal to g of x. तो ये कोई दो कर्व हैं. Now we want to find angle between these two curves. ये साइड में लिख लेते हैं, these are two curves. So बच्चा इनके बीच का जो एंगल है, एंगल इज नॉट सेम. यू कैन सी कि एंगल चेंज हो रहा है ना? ये स्ट्रेट लाइन्स तो है नहीं. सो बच्चा एंगल बिटवीन टू कर्व्स विल बी कंसिडर्ड एज एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स at their intersection point. At their intersection point. तो अगर ये दोनों टेंजेंट बन रही है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो इसके बीच का जो एंगल है वही हम कंसिडर करेंगे एज एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स. राइट? सो ये डायग्राम अगेन हमने बना लिया नीट एंड क्लीन. सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर आर टू कर्व्स f of x and g of x. t1 is the tangent to the curve f of x and t2 is the tangent to the curve g of x at this intersection point. आप देख सकते हैं intersection point. ठीक है बच्चा? Now so ये is the same thing. Angle between two curves will be considered as angle between their tangents at their intersection point. ठीक है बच्चा? तो अगर हमें इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स. तो इंटरसेक्शन पॉइंट को P कंसिडर कर लेते हैं, x1, y1, एंड वी कैन कंसिडर एंगल बिटवीन दीज टू. So here you can see, here's the theta is the angle. So if we use the formula, tan theta will be m t2 minus m t1 upon 1 plus m t1 into m t2. Right bachcha? So what is m t1 here? I can say m t1 is slope of tangent t1 to the curve y is equal to f of x at point P, and we know as per the result that this slope is nothing but the derivative of the curve. So f prime x1 because at point P. Similarly, I can say mt2 will be
slope of tangent, that is T2, to the curve y is equal to g of x at point P, and which is nothing but derivative of that curve, that is g prime x1. So if we put their values, bacha, what we will get? We will get modulus of g prime x1 minus f prime x1 divided by 1 plus f prime x1 into g prime x1. So using this formula we can find slope of angle between, using this formula we can find angle between any two curves. So इसको मॉडिफाई कर लेते हैं क्योंकि हमें एंगल यानी कि थीटा ही निकालना है. तो tan को अगर आप राइट हैंड साइड में लेके आते हैं बच्चा तो ये tan इनवर्स बनेगा. सो tan इनवर्स ऑफ g प्राइम x1 माइनस f प्राइम x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस f प्राइम x1 into g prime x1. So using this formula we can find angle between any two curves, right बच्चा. So इसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत कम है बच्चा, एक ही क्वेश्चन है. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे which are based on this topic, right. So बच्चा कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कुछ भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करिएगा. कोई भी सजेशन या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. इस क्लास में हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट किया है, बट नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एक्सरसाइज, राइट. So बच्चा, all the best, take care, bye.